جی ناظرین، پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت یقیناً افطار ہو چکا ہوگا۔ آج جس دسترخوان پہ میں موجود ہوں، یقیناً یہ کسی پیر میر وزیر کا دسترخوان نہیں ہے۔ عموماً آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ روزانہ میں کسی پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ان وزراء کے ساتھ بھی افطار کرتا ہوں، اور ان کے سامنے بھی آپ اور ہم سے جو وابستہ براہ راست سوالات ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں۔ پر آج ایسا ہرگز نہیں۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ آج میں موجود تھا عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ، ان سے ہم نے بات کی، اور یہ جو دسترخوان آج یہاں پہ سجایا ہے عبدالستار ایدھی صاحب نے، آج ہم نے جو ہے عبدالستار ایدھی صاحب کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ، جو یہ ننھے منھے بچے ہیں، یہ پھول جیسے بچے جو ہیں، ان کے ساتھ افطار کیا۔ یقیناً ان کا روزہ تو نہیں تھا، پر یہاں آ کے یہ محسوس ہوا کہ درس جو ہے، ایک دنیائی اور دینی درس جو دیا جاتا ہے، وہ اگر سیکھنا ہے تو یقیناً ان بچوں سے سیکھیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں بے بس ہوتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں پھول کی طرح ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کے سامنے ان کو جو ٹریننگ دی گئی ہے وہ خاصی جو ہے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ان کو تعلیمات یہاں پہ دی گئی ہیں۔ افطار کے لیے جہاں پہ جب دسترخوان پہ یہاں پہ تمام چیزیں ان کی جو ٹیچر ہیں جو ان کے یہاں پہ خیال رکھتی ہیں وہ لگا رہی تھی، تو اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی تربیت کیسی ہے، ان کی جو ہے یہاں سے پرورش کیسی ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں باپ جس طرح گھر میں اپنے بچوں کو دینی اور دنیائی تعلیم دیتے ہیں، یہاں پہ آ کے ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ ان کو جو ہے جو درس دیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، یقیناً وہ قابل اعتماد اور قابل تعریف ہے۔ ہم ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالستار ایدھی صاحب، ان سے بھی ہم نے جس طرح پہلے بھی بات کی تھی، بہت سے سوالات جو آپ اور میرے رہ گئے تھے وہ ایدھی صاحب سے بھی کریں گے، پر ایدھی صاحب کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر لوگ موجود ہیں جو ایدھی صاحب کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچوں کے یہاں پہ خیال رکھتے ہیں، ان کی صحت کا، ان کی تعلیم کا، ان کے کپڑوں کا، یعنی کہ ماں سے زیادہ جو پیار دیتی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ یقیناً ہم ان سے بھی بات کریں گے، پر پہلے ایدھی صاحب سے کہیں گے کہ آپ ایدھی صاحب، اتنے بچے اور اتنا یہاں پہ جو ہے جس کو کہیں ڈسپلین اور ان میں ضابطہ اخلاق کے کس طرح یہ بیٹھے ہیں، یہ تعلیم اور تربیت کا عمل ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 17 ہوم ہیں، سب جگہ ایک ہی ترتیب ہے، کوئی تھپڑ نہیں مارنا، ہر کام محبت سے لینا اور محبت سے ان کو ورتنا۔ آج یہ انسان ہے اور انسانوں کے بچے ہیں، خدا کو دیکھنا ہے تو ان کے قریب ہے۔ یہ بالکل معصوم ہے، بے سہارا ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ ان کا جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو سنبھالنے والی لڑکیاں 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان کا سونے کا، ان کا کھانے کا، ان کا پینے کا، تعلیم، علاج، سب کا خیال رکھتی ہیں، اور ٹائم کے مطابق یہ باقاعدہ کام کرتے ہیں۔ ٹی وی کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز کی حرکت بھی کر لیتے ہیں۔ بچے ہیں، فرض تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ انسان ہے۔ ہمیں تمام پاکستانی انسانوں کو یہ فرض ہے کہ یہ یتیم، معصوم، مسکین، بے سہارا، جن کا کوئی نہیں، ان کا اللہ، اس کے بعد آپ ان سے جو بھی ہو سکے مدد ادارے میں بھیجیں اور ادارہ کی خدمت کریں۔ شکریہ۔ ایدھی صاحب، یہ تو ہے طے ہے کہ پاکستان کی قوم ایسی قوم ہے
जो बिना किसी तफरीक के, मज़हब के, इस्लाम के, रंग व नस्ल के, ज़ात के, सूबों के, शहरों के, कस्बों के, उसको बालातर होके किसी भी मुश्किल घड़ी में कोई भी आफात हो तो ये कौम पूरी मुत्तहद हो जाती है। यानी कि आप समझते हैं इस कौम में जज्बा है, आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आप खाली हाथ नहीं लौटते, और आपको जो है पाकिस्तान का गयूर अवाम, जैसे आपने पहले फरमाया, रक्षा वाला, टैक्सी वाला, कागज़ चुनने वाला, झोली आप जब फैलाते हैं तो वो भर देते हैं आपकी झोलियाँ। ये एक अल्लाह का कमाल है, क्योंकि मेरा ये नीयत है कि इस मुल्क को गुर्बत देने वाले, जुल्म देने वाले, मसाइल देने वाले ये टैक्स चोर, ज़कात चोर, ये सरमायादार डाकू हैं। ये कुछ भी करें, मेरे मिशन में बहुत सी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन मैं रोड का फ़कीर हूँ। मुझे गरीब बहुत पसंद करते हैं और मैं गरीबी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अभी तो मेरी बीमार हूँ, तो भी मैं अपना काम चालू रखा हूँ। अभी एक खबर मिली कि बर्मा के मुसलमान इंसान, जो बर्मा को नेविन ने इनकलाब लेकर 40 साल पहले लाया, वहाँ मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान होते इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये तफरीक ख़त्म करें। ये बर्मा की शान के खिलाफ है। हर को अपना मजहब पालने का हक है, रहने का हक है, इंसानियत की ज़िंदगी बसर करने का हक है। ये फ़ौरन बंद हो जाए, और इसके आवाज़ के लिए मुझे ज़रूरी हुआ तो मैं व्हील चेयर पे बीमारी की हालत में भी बर्मा पहुंचकर उनको अमन का पैगाम दूंगा, इंसान बनाऊंगा, इंसान बनाने की कोशिश करूंगा। मज़हब इंसानों के लिए आया है, बाकी पिछान है, आप कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मज़हब इंसानियत के लिए। इंसान इंसान है और इंसानी तरीके ज़िंदगी बसर करने का सबको हक है। ये सब बच्चों के साथ आपको कैसा महसूस होता है कि बच्चों के साथ आज इफ्तार किया? वैसे भी आप बच्चों के साथ ही ज़्यादा पसंद करते हैं रहना? अच्छा, खुदा के करीब जाना है तो ये मासूम बच्चे, इनका खुदा के सिवा कोई नहीं है। खुदा इनके करीब है, ये खुदा के करीब है। हमें महसूस होना चाहिए कि आज हम खुदा की महफिल में बैठकर इफ्तारी कर रहे हैं, जिससे अल्लाह भी खुश, इंसानियत भी खुश। मज़हब मैंने पहले कह दिया पिछान है, मज़हब असल इंसानियत है। हमें इंसानी नाते सबसे बर्ताव करना चाहिए। मैं पाकिस्तान में जब से पैर रखा हूँ, मेरी पहचान इंसानियत है, इंसानों की खिदमत। जी इदी साहब, आखिर बिल्कुल प्रोग्राम इख्तिताम पे जा रहा है। क्या समझते हैं कि वो लोग जो इस वक्त माह रमज़ान के महीने में, रहमतों के और बरकतों के महीने में आपको देख रहे हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, ये कौम ऐसी कौम है कि मुश्किल घड़ी में और माह रमज़ान में दिल खोल के इमदाद करती है, और अपने जो है जो इस माह रमज़ान के महीने में जो भी हो सकता है वो इस कौम को, जो जहाँ पे समझते हैं कि ये इस इमदाद का या इस खैरात का या इस ज़कात का मुस्तहिक़ है, उसको देते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जो से क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं इंसानी नाते इंसानों को अपील करूंगा कि आप ऐसे मौके पे भी आप इन यतीम बच्चों को, जिनके माँ बाप आप हैं बनकर, इनकी जो मदद कर सकते हैं वो करें।
हमारे कोई भी सेंटर पे, पाकिस्तान पूरे में 400 सेंटर हैं, आप जमा करा सकते हैं, 2 रसीदें ले सकते हैं। ये आपके ही पैसों से यह तोहफा चल रहा है और अल्लाह को राजी करने का एक ही जरिया है। आज अपनी जगह पे, उम्रा अपनी जगह पे, मस्जिद अपनी जगह पे, लेकिन ये इबादत इंसानियत का हुकूक है, हुकूक को लिबाद है, जो अल्लाह को भी पसंद है और सबको पसंद है। अल्लाह के करीब जाना है तो उनकी हो सके इतनी मदद आप करें। टैक्स चोरी छोड़ें, जगह चोरी छोड़ें, सादगी अपनाएं और मुल्क में गुर्बत ख़त्म करके दहशतगर्दी ख़त्म करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार ईदी साहब, आपने बड़ा अहम मैसेज दिया उस कौम को, जिस कौम को यकीनन नहीं कभी भी मुश्किल इस वतन अजीज़ पे आई है तो मुत्तहद होकर तमाम उस मुश्किल से उन्होंने इकट्ठे जो है होके जो है मुकाबला किया है। और यकीनन नहीं माह रमज़ान के महीने रहमतों और बरकतों और शफ़क़तों के महीने में, इस माह में यकीनन नहीं हमारी कौम जो है खुल के जो है इमदाद करती है, लोगों की ज़कात करती है। और ये फ़र्ज़ आयद होता है हम तमाम इंसानियत नाते, मुसलमान होने के नाते, कि हमें ये दर्ज देता है कि कम से कम इस महीने में ज़कात और फ़ितरा जो हैं दें। और इसके लिए मुस्तक़ जो इदारा है जो जिसका हक़ है आप पे और हम पे, वो एक ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है जो यकीनन इस कौम की और मुल्क की मदद कर रहा है। आपको भी हमारी इल्तिजा है कि अब्दुल सत्तार ईदी की मदद करें। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ईदी सेंटर पे जाके इनके अकाउंट पर, इनके जो है ईदी सेंटर की जो एम्बुलेंसेस हैं उनको आप फ़ितरा और ज़कात दे सकते हैं, कि जैसे कि आने वाले वक्त में ये मुल्क और कौम की खिदमत भी करे और पाकिस्तान में मौजूद तमाम ऐसे मसाइल जो आम ज़िंदगी में होते हैं उनकी जो है ये मदद कर सकें। पर जाते जाते आज एक सवाल एक और मैं छोड़ता हुआ जाऊंगा कि आप और हम क्या सही माना में मुसलमान हैं? क्या हम तमाम उस दीन पे अमल करते हुए और दर्स पे अमल करते हुए अब और हम हकीकी माना में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं या नहीं? ये इर्द गिर्द आप अपने गिरबान में भी झांकिएगा, मैं भी झांकूंगा कि क्या हम लोग सही मुसलमान होने के नाते इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं या नहीं। इस दुआ के साथ आफ्ताब मुगैरी को इजाज़त दीजिए कि कल आने वाला दिन वतन अजीज़ के लिए एक अच्छा दिन साबित हो। कल किसी और शख्सियत के साथ इफ्तार करेंगे और उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير